Can we start now, Masood? Yes, please. Please. Yeah, thank you. So, uh, welcome everyone and good evening. Today, on behalf of Democracy Dialogue and ASEM, UAS, and HRLN, as all of you are aware that today is an important evening and day for all of us, and we know that RTI Act is one of the important acts which affects, influence, and has something to do with every citizen of the country. And keeping that, several, all of you have read, and we are aware that there have been several attempts by various governments, either central and state governments, somewhere to weaken the implementation of RTI Act by different means, arguments, even including rejecting large number of applications, as you are aware that, and that violates the right to privacy of government employees, its confidential information, or information requested is somewhere personal, and lot of issues in case of if you see the recent case of uh, uh, there have been several cases where many RTI activists have faced a lot of issues while getting the information. People have been trying to find these issues, and Democracy Dialogue finds very apt to have discussions today evening on these issues. Uh, Before I invite Mr. Masood to take over and carry forward, we would also find that the recent case of our state in Telangana, where Chief Secretary Government of Telangana issued an circular instructing every PIO to obtain permissions from higher ups before providing applicants with information they seek under RTI, and 2005 in the state, which is an attempt to dilute or somewhere weaken the RTI Act. So these are the certain cases which we will hear from the experts here today evening. We have Shri Shailesh Gandhi. Shailesh Gandhi is a first generation entrepreneur and distinguished alumnus awardee of IIT Bombay. He sold his company to become an RTI activist. Amazing work by somebody like Shailesh Gandhi. He was part of National RTI movement, which was involved in drafting National Act. He was also convener of the National Campaign for People's Right to Information. He has used RTI and trained many citizens, thousands of government officials through various workshops and seminars. The only RTI activist to have been chosen as central CIC, he disposed a record of lower to 20,000 cases in 3 years or almost 4 years of time. He gave several landmark RTI decisions based on RTI, apart from organizing various. For, we are aware that first digital paperless office in the commission of CIC was done by him. He is passionately pursuing the cause of evolving ways for a time-bound justice delivery system and improving governance systems as a whole. Among many awards, some of the awards I can mention is Nana Palki Wala Civil Liberties Award, MR Pai Award, and we have been aware that he has written a lot of paper in some of the published books related to this. With a very brief introduction of Mr. Shailesh Gandhi, I welcome you, sir, on behalf of Democracy Dialogue, ASEM, and UH and HRLN, and because these organizations have been voicing and discussing as a neutral platform on the issues which concerns every citizen. I also would like to introduce Professor Madhusudan Sridhar on this forum. Professor Sridhar Acharyulu was born in 1956. He's an Indian academic and former Central Information Commissioner. He is presently serving as a Dean, School of Law, Mahindra University. He was also one professor at Nalsar Law University at Hyderabad and Dean at Penn University. We know that he has been writing critically on in the area of law and right to citizens. आपका म्यूट हो गया जी अभी।
Ziya bhai, all of you to give the deliberations. Over to Mr. Masood and carry forward, please. Over to whom? thank you, Ziya bhai. Shailesh Gandhi sir will join in a minute, and he has another meeting at 7, so he will give a brief talk on privacy and transparency. So I think he is joining. So after that, I will give a small presentation on implementation of RTI Act in the state of Telangana. Then Professor Madhubhushan Sridhar sir will give a talk on the issue of state's obligation on the implementation of RTI Act. So Shailesh sir is joining. So we'll wait for a minute and then we'll start. Thank you. So I think it will take some time to join. Shailesh sir is in some busy. He's in some busy. So I'll start my presentation. I have a small presentation on the implementation of RTI Act in the state of Telangana. So I'll give you a brief. Sir, join. Welcome, sir. Namaskar. Namaste, sir. Extremely sorry for the inconvenience to the speakers and the participants due to some technical issues, as we are on the edge Namaskar, of sir. technical. नमस्कार। हाय, हम लोग ऐसे ही मिलते हैं, इसके सिवा भी मिलना चाहिए कभी। Unmute yourself, Sridhar. So, namaste, sir. Good evening. Namaskar. Namaskar. Yeah. So, Shailesh sir will start with you. Yeah, you sir, please. as you have some less time to, you can start, sir. Right. Are you giving me screen sharing rights? Yeah. Give me. Tabriz, can you please enable? Host is disabled आ रहा है। Make him co-host. Just already made co-host. Yes, now I can. इंग्लिश में अच्छा रहेगा, इंग्लिश हिंदी मिक्स करूं? Mix better रहेगा, sir. Mix. The right to information is a fundamental right of citizens under Article 19(1)(a). And unfortunately, प्राइवेसी के नाम पे बहुत बड़ा झटका दिया जा रहा है इस कानून को। इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। आरटीआई को इफेक्टिव बनाना जरूरी है और ये आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं करेगा। जिसके हाथ में पावर है उन्हें आरटीआई पसंद नहीं है, ये हमें समझ लेना चाहिए। तो ये कहना कि सरकार ये करे वो करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमको हाथ में लेके कुछ करना पड़ेगा और ये एक तरीका है। 81(j) के तहत प्राइवेसी के नाम पे बहुत सारी सूचना मना की जा रही है। हम जरा देख ले
ये कानून क्या कहता है। 8(1)(j) का एग्जम्पशन, information which has been expressly, information which relates to personal information, the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual. Larger public interest का clause हम छोड़ देते हैं फिलहाल. Provided that the information which cannot be denied to Parliament or state legislature shall not be denied to any person. सेक्शन 8(1)(j) अपना बहुत इलैबोरेटली बहुत अच्छी तरह ड्राफ्ट किया गया है। मेरे हिसाब से अगर किसी को डिनाई करना है 8(1)(j) के तहत, तो उसको ये कहना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन कुड बी डिनाइड इफ इट वाज पर्सनल इंफॉर्मेशन and disclosure has no relationship to any public activity or interest, or it is unwarranted invasion of the privacy of the individual. 99% पेपर्स जो गवर्नमेंट में हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं, वो प्राइवेट नहीं है। वो प्राइवेट एक्टिविटी के, मेरे घर में मैं क्या करता हूँ, मैं क्या खाना खाता हूँ, वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में नहीं आता है। मगर यदि मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ और कहीं रेस्टोरेंट में जाके खाना खाता हूँ और उसका बिल प्रेजेंट करता हूँ तो वो आता है। सो पब्लिक रिकॉर्ड की बात है, वही आरटीआई में हम एक्सेस करते हैं। अब प्राइवेसी क्या है, इसमें बड़ी गड़बड़ है और इसमें कुछ हद तक अपनी भाषा की भी एक सीमा है। हिंदी भाषा में प्राइवेसी का इक्विवेलेंट वर्ड मुझे नहीं मिला है। मैं कई लोगों को पूछा है, लोग कहते हैं निजिता। निजिता यानी पर्सनल, निजी जो है वो पर्सनल है। आपका नाम निजी है, आपकी उम्र निजी है, मगर वो प्राइवेसी नहीं है। तो प्राइवेसी क्या है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे। और यही कंफ्यूजन में बहुत सारी गड़बड़ हो रही है। और ये कानून बनाने के टाइम पे हमें ध्यान में था कि ये पीआईओ के लिए कठिन है सोचना कि कौन सा प्राइवेट है कौन सा पब्लिक है। इसलिए इसी क्लॉज को, सिर्फ 8(1)(j) को एक प्रोवाइजो दिया गया, provided that the information which cannot be denied to the parliament or state legislature shall not be denied to any person. अब इसका बैकग्राउंड थोड़ा देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से किसी को अगर डिनाई करना है 8(1)(j) कह के, तो उसे ये कहना चाहिए पर्सनल इंफॉर्मेशन है। पर्सनल इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन पर्सनल है। मैं चिट्ठी लिखूं, मैं बोलूं, किसने अभी, कौन बोल रहा है, शैलेश गांधी बोल रहा है, तो ये निजी हो गया, पर्सनल हो गया। इट आइडेंटिफाइज अ नेचुरल पर्सन। मगर उसके साथ उसको ये कहना चाहिए, इट इज हैज नो रिलेशनशिप टू पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट। जो भी पेपर सरकार में है वो विदाउट एनी रिलेशन टू पब्लिक एक्टिविटी सरकार में है क्यों, ये सवाल उठता है। आरटीआई ये नहीं कहता है कि सब कुछ ले लो। आरटीआई सिर्फ ये कहता है कि जो सरकार के पास है वो जनता की मालिकी है। इट इज द ओनरशिप ऑफ द पीपल। हम लोकशाही कहते हैं, लोकशाही का मतलब एक ही निकलता है, लोगों की शहनशाही। हर इंसान को, हर नागरिक को लगना चाहिए कि वो बादशाह या बेगम है इस देश का। तो जो सूचना मांगते हैं वो हमारी ओनरशिप है, हमारी मालिकी है। तो उसमें से देना शुड बी द डिफॉल्ट मोड जिसको कहते हैं। मतलब पहली सोच ये होनी चाहिए कि तो देना पड़ेगा। अगर कुछ अपवाद रखे हैं, और वो अपवाद भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें, संविधान में देखें, आर्टिकल 92 में दिए हैं, उसको छोड़ के मेरा आर्टिकल 19(1)(a) में रिस्ट्रिक्शन नहीं किया जा सकता। The only permissible restrictions in Article 19(1)(a) are given in Article 19(2), which permits reasonable restrictions in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign state, or incitement of an offense. गौर से देखिए, प्राइवेसी के साथ दो ही वर्ड्स इसमें से रिलेट होंगे, डिसेंसी और मोरालिटी। भारत देश को कुछ नहीं हो जाएगा प्राइवेसी किसी की इन्वेड हो गई तो, दूसरे देशों के साथ अपना कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगा। मगर हाँ, डिसेंसी और मोरालिटी वायलेट करे वो प्राइवेसी के नाम पे हो सकता है। तो जिसको जब कभी कोई कहे कि ये 8(1)(j) में मैं क्लेम कर रहा हूं एग्जम्पशन, तो उसको ये कहना चाहिए कि मैं ये इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट को नहीं दूंगा, और ये इंफॉर्मेशन देने से प्राइवेसी या मोरालिटी को असर होगा, वायलेट होगा, तभी वो मना किया जा सकता है, नहीं तो नहीं मना किया जा सकता है। सेक्शन 8(1)(j) देश का
इस प्रकार के कानूनों को देखे हम दुनिया भर में, उससे अलग तरह से ड्राफ्ट किया गया है। और फॉरेन देशों के कानून हमारे नहीं, कुछ लोग कहते हैं अमेरिका में ये है, श्रीलंका में वो है। मेरे देश की पार्लियामेंट अलग है। मेरे देश की पार्लियामेंट जो कानून बनाती है वो मेरे लिए कानून है, न कि जो किसी दूसरे देश के लिए। नहीं तो फिर पार्लियामेंट को हटा दीजिए, देश की पार्लियामेंट को हम हटा दें। मैंने मेरे ऑर्डर्स में जॉब एप्लीकेशंस, कास्ट सर्टिफिकेट्स, इनकम सर्टिफिकेट्स, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, ACRs, एसेट्स, एप्लीकेशंस फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, पासपोर्ट्स, लाइसेंसेस, ये सब मैंने अलाउ किए थे। और मेरा ये मानना है कि 81J में इनको एग्जम्पशन नहीं है। अभी इसको सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से भी देख लें एक बार। मेरे हिसाब से कानून को पहले पढ़ना चाहिए, कानून में क्या लिखा है वो पढ़ना चाहिए। अगर कोई वायलेटिव है कॉन्स्टिट्यूशन के तो वो कोर्ट कह सकता है, अगर उसको छोड़ के कानून का वो कानून बदल नहीं सकता है। तो आर राजगोपाल का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 1994 का, जिसका ये रेशियो है। क्लियरली बहुत सारा आर्गुमेंट किया गया है और उसके बाद ये रेशियो है। A citizen has the right to safeguard the privacy of his own, his family, marriage, procreation, motherhood, childbearing, and education, amongst other manners. None can publish anything concerning the above matters without his consent, whether truthful or otherwise, and whether laudatory or critical. मैं वापस दोहरा दूं, आर्टिकल 19(1)(a) के तहत 3 मेजर राइट्स आ गए: राइट टू फ्री स्पीच, राइट टू पब्लिश, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू पब्लिश का कोई स्पेसिफिक जिक्र नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मगर हम राइट टू पब्लिश को फंडामेंटल राइट मानते हैं आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। तो मेरे हिसाब से आर्टिकल 19(1)(a) को इक्वल देखना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ पब्लिशिंग एंड फ्रीडम ऑफ एंड राइट टू इंफॉर्मेशन, उन तीनों को एक ही लेवल पे देखना चाहिए। राजगोपाल ने कहा है, once a matter becomes a matter of public record, the right to privacy no longer subsists and it becomes a legitimate subject for comment by press and media, amongst others. We are, however, of the opinion that in the interests of decency, Article 19(2), an exception must be made to this rule, which is a female who is a victim of sexual assault, kidnap, abduction, or like offense should not be publicized in press or media. ये जरूर है, तब RTI एक्ट नहीं बना था, मगर संविधान का इंटरप्रिटेशन किया था और ये सही इंटरप्रिटेशन किया था। अगर किसी को 81J का अलग इंटरप्रिटेशन देना है तो मेरे हिसाब से उसको बोलना चाहिए कि आर राजगोपाल गलत है, और आर राजगोपाल को गलत बोलने के लिए 2 से ज्यादा जज की बेंच चाहिए। नंबर 3 इस रेशियो डिसिडेंटी का है। इन द केस ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, it is obvious right to privacy, or for that matter the remedy of action for damages is simply not available with respect to these acts and conduct relevant to the discharge of their official duties. खास तौर पे राजगोपाल में ये कहा गया था कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके पब्लिक रिकॉर्ड्स को जो वो काम करते हैं उसको मना नहीं कर सकते हैं। एक मिनट, मैं जरा चश्मे बदल देता हूँ। मैंने अब गिरीश रामचंद्र देशपांडे ने क्या किया सुप्रीम कोर्ट में, कोई रीजनिंग नहीं दिया है। रीजनिंग एक ही है, अगर बहुत मैंने ढूंढा तो एक ही रीजन मिलता है कि CIC के आर्गुमेंट के साथ हम एग्री होते हैं। CIC का वो डिसीजन देखें जिसपे उन्होंने रिलाई किया है, उसमें भी कोई रीजनिंग नहीं है कि 81J का क्या मतलब है। Apex Court held that copies of all memos, show cause notices and orders of censure, punishment, assets, income tax returns, details of gifts, receipt, etc. by a public servant are personal information as defined in section 81J. उन्होंने ये कह दिया कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसके लिए 81J में एग्जम्प्ट है। RTI का कानून ये नहीं कहता है। The performance of an employee officer in an organization is primarily a matter between the employee and the employer, and normally these aspects are governed by service rules which fall under the expression personal information. एम्प्लॉयर कौन है ये मुझे सुप्रीम कोर्ट को जाके बताना पड़ेगा क्या? भारत के शहंशाह, बादशाह या बेगम एम्प्लॉयर है। सरकार तो एक डिवाइस है। सरकार में हम लोगों को चुनते हैं, लोगों को अपॉइंट करते हैं, वो हमारे बिहाफ पे होता है, हम उसको लेजिटिमेसी देते हैं। अगर हमने लेजिटिमेसी नहीं दी तो कोई लेजिटिमेट नहीं है, कोई यहाँ पे दुनिया का बादशाह नहीं है, हम ही इस देश के बादशाह या बेगम हैं।
The details described by a person, ये गिरीश देशपांडे कहता है, the details disclosed by a person in his income tax returns are personal information which stand exempted from disclosure under section clause J of section 8(1) of the RTI Act unless it involves a larger public interest. गलत है, कानून को कोर्ट ही नहीं किया है. No reasoning or explanation how the court came to this conclusion. कैसे ये conclusion पे आ गए? और ये आर राजगोपाल के बिल्कुल खिलाफ है. Therefore, in my opinion, it is per incurium. ADR-PUCL में भी अगर आप पढ़ेंगे ADR-PUCL का केस जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले निर्णय दिया था इसका, जिसमें ये कहा गया था प्रिंसिपल की भाई जो इलेक्शन के लिए खड़ा हो उसको क्रिमिनल चार्जेस और एसेट डिक्लेयर करने पड़ेंगे. तो ADR-PUCL में सिद्धांत ये रखा था कि citizens have a right to know about the assets of those who want to become public servants. गिरीश देशपांडे कहता है कि citizens have no right to know about the assets of those who are public servants. इस चीज को जरा गौर से सोचिए. इसका मतलब ये हुआ कि अगर लड़का और लड़की शादी करना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि कुछ जानकारी एक दूसरे के बारे में देनी पड़ेगी शादी के पहले, मगर शादी हो गई उसके बाद नहीं देने की जरूरत है. मुझे तो ये हास्यास्पद लगता है. Girish Deshpande judgment is not a precedent laying the law. It does not follow the ratio descendantly of R. Rajgopal and ADR-PUCL. ADR-PUCL and R. Rajgopal के judgments को डील ही नहीं किया इन्होंने, जो डील करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि वो कैसे उससे अलग निर्णय ले रहे हैं. एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि वो SLP था, जिसमें डिटेल्ड रीजनिंग देने की जरूरत नहीं है, मान लेते हैं, तो वो प्रेसिडेंट नहीं बनता है. रीजनिंग के बिना प्रेसिडेंट नहीं बनता है. Denial of information claiming exemption under section 818, denial must state that is personal information which is or is not part of public record is or is not unwarranted invasion of the privacy of the individual, and PIO या commissioner या first appellate authority या judge, he would not give this information to parliament. ये subjective assessment है कि अगर मैं जज हूं और मैं कहता हूं 818 लगता है तो मुझे ये कहना चाहिए कि मेरे हिसाब से ये सूचना मैं पार्लियामेंट को नहीं दूंगा क्योंकि ये अभद्र है, डिसेंसी एंड मोरालिटी को वायलेट करता है. Girish Deshpande judgment unfortunately has been treated as a precedent in R.K. Jain, Canara Bank and Subhash Chandra Agrawal versus Supreme Court. Many PIOs, government departments and commissioners quote this. ये right to information is becoming right to denial of information. Most information relates to some person, except budgets. Order किसने निकाला? फलाने ने order निकाला, वो भी निजी है. आदमी तो लगता ही है किसी भी सूचना में, अब वो सूचना ही अगर नहीं देंगे तो क्या होगा? Whenever PIO does not wish to give information, Section 81J is claimed. ये मैंने कई बार देखा है कि Section 81J क्लेम करते हैं. जब भी सूचना नहीं देनी है कहते हैं किसी न किसी को पर्सनल, उसके कुछ उदाहरण दूंगा आपको आगे. गिरीश देशपांडे has the effect of amending the RTI Act. जब RTI Act सरकार ने अमेंड करने की कोशिश करी, हम लोगों ने काफी इसके विरोध किया, डट के विरोध किया, मगर ये अमेंडमेंट है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल हो गया है इसका. 81J को कैसे पढ़ा गया है? 81J information is related to personal information unless the PIO is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information. इस तरह से पढ़ा गया है गिरीश देशपांडे में और अभी ये पढ़ा जा रहा है. और ये बड़े दुख की बात है कि provided that the information which cannot be denied to parliament or state legislature shall not be denied to any person, ये गिरीश देशपांडे की जजमेंट में उड़ा दिया गया है. इसका जिक्र तक नहीं है, मतलब कोर्ट के ध्यान में ही नहीं था कि ये प्रोवाइजो इस क्लॉज को है, और सिर्फ ये कह दिया 3 judgments have treated Deshpande as, ये वही है. 81J must be interpreted strictly as per the RTI Act and Article 19(2) of the Constitution. RTI has same status as freedom of speech and right to publish in Article 19(1)(a). 2 judgments of the Supreme Court जो RTI से डायरेक्ट नहीं लागू है, मगर ये समझने के लिए it is worth remembering 2 judgments of the Supreme Court. A 5-judge bench has ruled in P. Ramchandra Rao versus State of Karnataka. Courts can declare the law, they can interpret the law, they can remove obvious lacuna and fill the gaps, but they cannot entrench upon in the field of legislation properly meant for the legislature. मेरे पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया है,
उस कानून को फेरबदल करने का विथ ऑल रिस्पेक्ट कोर्ट्स को कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है। वो कह सकते हैं कि एक गैर संवैधानिक है, मगर कानून को बदल नहीं सकते जैसे गिरीश देशपांडे ने किया है। इन राजीव सिंह दलाल वर्सेस चौधरी देवीलाल कहा गया है, द डिसीजन ऑफ अ कोर्ट इज अ प्रेसिडेंट इफ इट लेज डाउन सम प्रिंसिपल ऑफ लॉ सपोर्टेड बाय रीजंस। Mere casual observations or directions without laying down any principle of law, without giving reasons, does not amount to a precedent. गिरीश देशपांडे को precedent treat करना गलत है. It is a judgment that is per incuriam in my opinion. And उसको support लेके जो बाकी 3 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं, वो भी मेरे हिसाब से वही लाइन में आएंगे. अब इसको और एक नजरिए से देख लेते हैं. सेक्शन 4(1)(b) कहता है कि ये सब सूचना खुद ब खुद देनी चाहिए गवर्नमेंट को, पब्लिक अथॉरिटीज को. मंथली रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय ईच ऑफ इट्स ऑफिसर्स पर्सनल, सिस्टम ऑफ कॉम्पेंसेशन पर्सनल, द बजट एलोकेटेड टू ईच ऑफ इट्स एजेंसी इंक्लूडिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल प्लान्स, प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड डिसबर्समेंट्स मेड पर्सनल, द मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सब्सिडी प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग द अमाउंट्स एलोकेटेड एंड डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ सच प्रोग्राम्स पर्सनल, पर्टिकुलर्स ऑफ रिसिपिएंट्स ऑफ कंसेशंस सब पर्सनल. इसने तो आरटीआई एक्ट का ही बाजा बजा दिया गिरीश देशपांडे ने. पर्सनल इंफॉर्मेशन को एग्जाम्प्ट करके पूरे आरटीआई एक्ट का उल्टा पुल्टा हो गया है. डीओपीटी ऑफिस मेमोरेंडम 15 जुलाई 2013 का है. ऑल ट्रांसफर ऑर्डर शुड बी पब्लिसाइज्ड थ्रू द वेबसाइट और एनी अदर मैनर लिस्टेड इन सेक्शन 4(4) ऑफ द एक्ट. ट्रांसफर ऑर्डर्स भी आज रिफ्यूज किए जा रहे हैं ये कह के कि सेक्शन 8(1)(j) में कवर्ड है. पर्सनल तो है, इसको मैं मना नहीं करता हूं, मैं पीआईओ को दोष नहीं दे सकता हूं. इसका दोष अगर है तो हम लोगों पे है, भारत की जनता पे है. उसने ये आवाज नहीं उठाई कि हमारे कानून को बहुत बड़ा झटका बैठ रहा है. इंपैक्ट ऑफ गिरीश देशपांडे, क्या क्या मना किया जा रहा है, कुछ उसके थोड़े उदाहरण दे रहा हूं. मैंने खुद ने पूछा था कि एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट्स या एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स कितने आईएएस अफसरों के 1 साल 2 साल 3 साल और 4 साल के लिए नहीं आ रहे हैं. इतना ही मैंने पूछा तो कोई नाम नहीं. वो रिफ्यूज कर दिया, बोला पर्सन्स रिलेटिंग टू पर्सन्स आप पूछ रहे हैं, देयरफॉर इट इज पर्सनल इंफॉर्मेशन. गलत था, बट ये अभी ऐसे छूट ली जा रही है. रिक्वेस्ट फॉर डिटेल्स ऑफ एमएलए फंड्स वाज डिनाइड सेइंग इट वाज पर्सनल इंफॉर्मेशन. इट इज अ पर्सनल इंफॉर्मेशन. डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ पीएम फंड, amount spent on Amit Shah's security, bogus caste certificates, education certificates, ghost employees, personal. कौन हमने रखा है, किसको रखा है नौकरी में, हम पर्सनल हम नहीं बताएंगे. Gross arbitrariness and corruption in selection of jobs and non-conformance to rules and laws. Disproportionate assets compared to declared income, personal. Verification of affidavits of elected representatives, personal. जो affidavits देते हैं वो verify कोई नहीं करता है, ये सही है नहीं है, उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए मांगो तो बोलते हैं ये तो पर्सनल है. अनफेयर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड जॉब सीकर्स इन गवर्नमेंट, डिसरिगार्ड ऑफ प्रूव्ड करप्शन चार्जेस अगेंस्ट ऑफिशियल्स, फाइल नोटिंग्स एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग्स. ऑल द अबव हैव बीन डिसअलाउड. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हैज द इफेक्ट ऑफ अमेंडिंग द आरटीआई एक्ट एंड कंस्ट्रिक्टिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन. दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर. बहुत खेद के साथ कहता हूं कि हम लोगों ने इस पे आवाज नहीं उठाई है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम कोर्ट की अवमान्य करें, कोर्ट को रिस्पेक्टफुली बताएं, मगर ये चर्चा पूरे देश में होनी चाहिए. और जब कोई मना करता है 8(1)(j) बोल के हमें ये आर्ग्यू करना चाहिए. कुछ लोग बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट एस्टैब्लिश करो. 8(2) और 8(1) अगर आप साथ में पढ़ें तो उसका मतलब ये होता है कि पहले आप एक्सेप्ट करते हैं कि कोई एग्जम्पशन लागू होता है, तभी पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है. तो कमिश्नर्स को, किसी को भी ये डिसीजन लेना काफी कठिन है. मैंने शायद 20,000 के ऊपर डिसीजन दिए, 4 या 5 में ही मैंने ये कबूल किया कि एग्जम्प्ट है, फिर भी लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट है इसके लिए देना बहुत मुश्किल डिसीजन है. और पीआईओ तो ऐसा डिसीजन दे ही नहीं सकता है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी भी नहीं दे सकता है. कमिश्नर किसी केस में दे दे तो पब्लिक इंटरेस्ट पे डिपेंड करना मेरे हिसाब से एक्टिविस्ट के लिए गलत हो जाएगा. हो सके वहां तक पब्लिक इंटरेस्ट के इंफॉर्मेशन ना मांगे, ये कहे कि एग्जम्प्ट ही नहीं है. What we need to do. और एक लास्ट आर्गुमेंट देता हूं प्राइवेसी का. मेरे हिसाब से सवाल ये हम पूछ लें कि डज गवर्नमेंट हैव अ राइट टू इंक्लूड माय प्राइवेसी रूटीनली. मेरी प्राइवेसी को वायलेट करने का रूटीन
तरह से सरकार को अधिकार है क्या, और जवाब सबका ये होगा नहीं। तो मेरे हिसाब से रूटीनली जो इंफॉर्मेशन मेरे बारे में कलेक्ट होती है, स्पेशल प्रोविजंस में नहीं, अगर मैं कुछ मेरे बेडरूम में कैमरा रखा है बिकॉज ऑफ दे, उनको लगता है कि हम यहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, तो वो अलग, वो स्पेशल कंडीशंस हो गई। बट रूटीनली पासपोर्ट एप्लीकेशन करो, जॉब के लिए अप्लाई करो, एग्जाम में बैठो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, ये सब रूटीनली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है सरकार। और जो रूटीनली कलेक्ट करती है वो प्राइवेसी वायलेट नहीं करती है, ये मान के करती है। आधार में भी ये बहुत डिस्कशन चला है। मेरे हिसाब से सरकार जो इंफॉर्मेशन नहीं ले उसका सवाल आरटीआई में नहीं आता है। सरकार जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है रूटीनली, वही डिस्प्यूट में होता है। इन मोस्ट केसेस ट्राई अवॉइड trying to justify disclosure in larger public interest. It works very rarely. फितूर तो है, रेयर केस में होता है, बट जनरल केस में नहीं होता, और पीआईओ तो नहीं कर सकता है, ये तो हम दावे के साथ कह सकते हैं। Raise a demand for RT application responses to be put on websites with word search facilities. These should be searchable by PIO name, applicant name, department, and subject. Getting a portal like Jan Sutna portal, all dashboards seen by officials should be open for viewing to citizens. बहुत जगहों में बहुत सॉफ्टवेयर है जो डैशबोर्ड्स सुपीरियर्स देखते हैं, वो सब जनता को भी देख सकने चाहिए। मॉनिटर द वर्क ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन। मेरे हिसाब से इसमें हम बहुत मार खाते हैं, हमने मॉनिटर नहीं किया है, जनता ने मॉनिटर नहीं किया इंफॉर्मेशन कमीशन को। Persuade 1 or 2 law colleges or bar associations to take ownership of this. Try and get the information commissions to dispose cases in a time-bound manner. Hold web meetings regularly to discuss RTI issues. देश भर में इसकी चर्चा होनी चाहिए RTI की। In case of attack suspected to be because of using RTI, Information Commission must order disclosure of all information sought by the victim on the website of the department. Raise the demand that information commissioners must dispose at least 6,500 cases in a year, giving the option of video conferencing to appellants and officials. Insist that before the shortlist is sent to the PM-CM committee, one interview should be made public. एक इंटरव्यू पब्लिक के सामने होना चाहिए, तभी कोई बेटर कमिश्नर्स हमें आएंगे। ज्यादातर कमिश्नर्स को सूचना के अधिकार से कोई लेना देना ही नहीं है, उनको कोई वास्ता ही नहीं है, वो ऐसे ही जैसे एक और जॉब सिनेक्योर पकड़ लेते हैं। IT activists should apply for information commissioners positions. ये बहुत जरूरी है। Citizens must take responsibility. मेरे हिसाब से RTI जो प्रॉमिस था वो फुलफिल नहीं हो रहा है, मगर हम जनता की भी उसमें कहीं गलती है, हम लोगों ने कोशिश नहीं करी है। कुछ लोग कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा ये सबसे अपील है कि 75 साल पहले हमने एक फॉरेन विदेशी सरकार को हटा दिया, और उस देश की जनता आज अगर ये कहे कि हम अपनी सरकार को मना नहीं सकते, हमारा कानून जो पार्लियामेंट ने पास किया उसको ठीक से नहीं चला सकते, तो कहीं ना कहीं लानत है हमारे पे, कहीं ना कहीं दोष हमारा है। अगर हम चाहें तो आरटीआई बराबर काम करे तो इट कन्वर्ट आवर डिफेक्टिव इलेक्टिव डेमोक्रेसी इनटू अ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। आज हम लोकशाही कहते हैं क्योंकि हम वोट करते हैं, सिर्फ वोटिंग से लोकशाही नहीं बनती, पार्टिसिपेट करना चाहिए, और वो पार्टिसिपेशन आरटीआई बहुत सिंपल सरल तरीका है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि देश भर में इसकी चर्चा होनी चाहिए कि 81J से आरटीआई को राइट टू डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन बनाया जा रहा है। कमीशंस के यहाँ 2-2 साल लगते हैं, उससे ये राइट टू हिस्ट्री बन रहा है, इतिहास का राइट बन जाता है। आरटीआई इंफॉर्मेशन नहीं बनती है वो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जिया भी आगे अब मिनट रह सकता हूं जी। अगर कोई डिसएग्री करता है मेरे से तो जरूर कहिए कि मिस्टर गांधी आप गलत सोच रहे हैं, ये कानून का ये मतलब नहीं होता है। आई विल बी हैप्पी टू करेक्ट माय सेल्फ। We'll take few questions if participant want to take ask from Sailesh Gandhi sir, as we have to leave for another meeting, so this is open for 2-3 minutes, please. और यदि आप सब कन्विंस्ड हैं कि मैंने जो बकवास किया वो सही है,
तो प्लीज इस मैसेज को सब जगह चर्चा कीजिए, छोटे छोटे ग्रुप्स में चर्चा कीजिए कि 81J से कानून को खत्म किया जा रहा है। श्रीधर जी भी बताएंगे, श्रीधर जी भी मेरी जैसे ही सोच रखते हैं। सूचना का अधिकार हमारा अधिकार है, इसको राइट टू डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं बना देना चाहिए, और ये गलत तरह से गैर संवैधानिक तौर से ये हो रहा है, इसके सामने हमें आवाज उठानी चाहिए। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि शैलेश सर को दूसरी मीटिंग के लिए जाना है। एक छोटा सा सवाल मेरे आई कैन पुट अप। इंफॉर्मेशन सीकिंग प्रोसेस में एक तो सिटीजन और पूरी ब्यूरोक्रेसी और फेडरल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ में, लेकिन हमने हिंदुस्तान में, इंडिया में इंस्टीट्यूशंस में भी, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ भी प्रॉब्लम देखा है। मिसाल के तौर पे किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई रिसर्चर, कोई एक्टिविस्ट इंफॉर्मेशन मांगना चाहता है, आइदर अबाउट रिक्रूटमेंट, एनी इश्यूज, एलिजिबिलिटी का, the universities are so much hesitant that you don't get it, so somebody who is an institution, educational institution particularly, very open area, it should be very transparent, academic matters. That is because we are allowing the courts to take away our right. We are responsible. मेरा एक स्लोगन है जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, मेरा भारत महान हम कहते हैं मगर मानते नहीं हैं, इसलिए मैं कहता हूं मेरा भारत महान नहीं है। मेरा भारत महान नहीं है, पर यह दोष मेरा है। मैं इस देश का बादशाह हूं या बेगम हूं, और अगर ये देश ग्रेट नहीं है तो मैं जिम्मेदार हूं। शिवाजी महाराज या अकबर बादशाह ये नहीं कहते थे कि मैं राजा हूं इसके लिए बैठ गया, अगर उसके कुछ गलत हो रहा है तो उसको ठीक करते थे। वो जिम्मेदारी हमारी है, और अगर हम उस जिम्मेदारी को निभाएंगे तब देश बेहतर बनेगा, अदरवाइज हम हमारे राइट्स खोते जाएंगे। सॉरी मगर मुझे जाना पड़ेगा। Thank you, sir. Thank you, sir. I cannot hear your presentation. I would have loved to hear it, sir. It's okay, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Masood, you have to unmute. Yeah. जी, तो I will take 10 minutes, only 10 minutes to present few RTI replies which I received from the State Information Commission and Government of Telangana to put light on the status of the implementation here in the state. This is not an academic kind of PPT, क्योंकि मैंने RTI में कुछ इन्फॉर्मेशन ली थी, उसको एक ऑर्डर में मैंने उसको डाल दिया है, तो ताकि मैं अच्छी तरीके से कन्वे कर सकूं। जैसे शैलेश सर भी बोल रहे थे कि RTI एक्ट का जो मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है, टू एम्पावर सिटीजन, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, कंट्रीब्यूट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, कंटेन करप्शन, एंड इन रियल सेंस RTI जो है आने के बाद ही हिंदुस्तानी शहरियों को उनके राइट्स बड़ा मिले, डेमोक्रेसी को वो लोग इंटरटेन कर पा रहे थे। नहीं तो उससे पहले कोई ऐसा कोई कानून नहीं था जिसमें वो लोग ब्यूरोक्रेट से या हुकूमत से पूछ सकते कि हमारे जो इन्फॉर्मेशन है दीजिए, हम जो ना इस कंट्री को रूल करते हैं, वी आर द रूलर्स ऑफ दिस कंट्री। लेकिन RTI आने के बाद आम लोगों को, आम शहरियों को इसका हक मिला। लेकिन unfortunately, due to non-performance and lack of effectiveness of the state information commissions, several state information commissions and the government of Telangana here in our state, casual attitude towards its mandate under Right to Information Act 2005 results violation of people's right to information. आज हम पहले हम इसको people's right to information बोलते थे, लेकिन आज ऐसा हो गया बहुत सिलेक्टिव लोग इसको जो एक्सेस कर पा रहे हैं। जैसे शैलेश सर बता रहे थे 81J का जो इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ही तेजी से, बहुत ही एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया जाए, तो ये आम लोगों के बस की बात नहीं है कि हम साइटेशंस पढ़ें, हम उसके कानून को पढ़ें कि कानून क्या बोलता है। लॉ के फील्ड से जो लोग नहीं हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होती है आमतौर पे।
जिसकी वजह से lack of transparency and accountability in functioning of the government is increasing culture of secrecy and arrogance within the bureaucracy. जिस लड़ाई को इतने साल लड़ने के बाद हमने जो हकूक राइट्स को हासिल किए थे, आज वो सारे धीरे धीरे हमसे छीने जा रहे हैं. वही सीक्रेसी एंड एरोगेंस वाला एटीट्यूड जो है ब्यूरोक्रेट्स में आ रहा है. Responses from the Information Commission which I got in response to my RT application, the pendency of appeals and complaints before the commission till 31st December 2020 was 10,814. Year-wise breakup of the cases pending before the commission is in 2017 there were 6,800 plus cases were pending. 2018 8,600 plus cases were pending. In 2019 9,000 plus cases were pending. In 2022 10,000 plus cases were pending. In 2022 this figure is from till 31st December. तो अभी जो है 10,000 केसेस कमीशन के पास पेंडिंग है. इसका मतलब ये है कि हर साल आप देखेंगे इसका ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है पेंडेंसी ऑफ केसेस का. एंड इन तेलंगाना 2019 और 2020 के बीच में हमने एडिशनल कमिश्नर्स को भी अपॉइंट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी 10,000 केसेस जो है दिसंबर तक हमारे पास पेंडिंग थे. स्टेट गवर्नमेंट का जो फेल्यूर है इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई एक्ट, पिछले 6-7 साल में हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अपने वेबसाइट पर गवर्नमेंट ऑर्डर, सर्कुलर्स, मेमो और जो भी मटेरियल जो मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 4(1)B जैसे सैली सर भी बता रहे थे, वो अपडेट नहीं कर पा रहे हैं. और द आर्गुमेंट इज के अननेसेसरी इंटरफेरेंस फ्रॉम द पब्लिक इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग. तो जिस दौर से हम निकल के आए थे कि जहाँ पे लोगों की जो ना हुकूमत होगी, लोग जो ना पार्टिसिपेट करेंगे, लोग सवाल पूछेंगे, आज गवर्नमेंट यही बोल रही है कि हमको लोगों का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, अननेसेसरी इंटरफेरेंस फ्रॉम पब्लिक गवर्नमेंट. तो ये एक बहुत बड़ा वो रहा है. गवर्नमेंट अभी भी कई डिपार्टमेंट्स के वेबसाइट पे कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, अपडेटेड नहीं है, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन कमीशन के वेबसाइट पे कई इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं है. मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशन आर रिजेक्टेड अंडर सेक्शन 8(1) ऑफ द आरटीआई एक्ट टू डील विद द एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज. 8(1)J के बारे में शैलेश सर ने बहुत डिटेल में बताया, लेकिन उसके अलावा भी कई सेक्शंस ऐसे हैं. There are around 13 subsections in section 8 जिसमें PIOs एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं. और होता यह है कि जब एक PIO एक आम आदमी को रिप्लाई देता है कि हम ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आती है, तो आम लोगों को पता नहीं होता है कि वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी क्या है, उसको कैसे आर्ग्यू करें, कैसे अपने केस को बनाएं, क्योंकि वो लॉ नहीं जानते. और मुझे भी बहुत वक्त लगा इन चीजों को समझने के लिए, आर्ग्यू करने के लिए, साइटेशंस पढ़ने के बाद कमीशन के सामने जाके आर्ग्यू करने के लिए. आम लोगों की इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही मुश्किल से मिल रही है, उसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल से हो रहा है उनको. तो मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड अंडर 8(1)J और उसी को जो ना कमीशन भी ना अपील करता है उनके डिसीजन को. मिसयूज ऑफ सेक्शन 6(3). सेक्शन 6(3) ये बोलता है कि अगर एप्लीकेशन कोई पब्लिक अथॉरिटी के पास आता है और वो इन्फॉर्मेशन उस ऑफिस में नहीं होती है, तो दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दैट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर टू ट्रांसफर दैट एप्लीकेशन टू द कंसर्न PIO जो भी डिपार्टमेंट में होता है. लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर हम फॉर एग्जांपल कमिश्नर GHMC के पास एप्लीकेशन हम फाइल करते हैं, हम पूछते हैं कि शहर में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है इस तरह की आप हमें दीजिए अलग अलग सर्कल्स में. तो कमिश्नर GHMC में जो PIO बैठता है वो क्या करता है, एप्लीकेशन को 6(3) के अंडर में ट्रांसफर करता है जोनल कमिश्नर के पास, जोनल कमिश्नर उसको ट्रांसफर करते हैं डिप्टी कमिश्नर के पास, फिर असिस्टेंट कमिश्नर के पास, ऐसे ही जाता रहता है. इसमें होता यह है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं मिलती है, और जो PIO है दूसरे जहाँ पे ट्रांसफर की जाती है उनके ऊपर ओवरबर्डन होता है एप्लीकेशंस का. जबकि सेंट्रलाइज इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होती है, वो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं. लोगों का वक्त ज़ाया करने के लिए इसको ट्रांसफर करते जाते हैं. मेरे पास एक पर्टिकुलर RTI में ऑलमोस्ट 600 लेटर्स हैव रिसीव, सिर्फ कम्युनिकेशन के इन्होंने इनको ट्रांसफर किया, इन्होंने इनको ट्रांसफर किया. तो इस तरीके से मिसयूज ऑफ सेक्शन 6(3) भी बहुत ज़्यादा से हो रहा है. गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने 2017 में चीफ सेक्रेटरी ने एक ऑर्डर इशू किया था जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटीज बनाने की बात की थी फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई एक्ट. तो इसके स्टेटस को जानने के लिए मैंने RTI फाइल किया. तो मुझे पता चला कि सिर्फ 11 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं तेलंगाना के, उसमें ये कमिटीज फॉर्म हुए हैं, जिसमें करीमनगर, सिद्दीपेट, मेदक, कोतागुडम, नलगुंडा,
Bedavelle, Warangal अर्बन, सिरिसला, निर्मल, पेदापल्ली, रंगारेड्डी, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में ये कमेटी फॉर्म हुए हैं। और ये उसका कोई रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं है। कोई मीटिंग जो है ना, उसका जो नोडल ऑफिसर जो है आरडीओ उस डिस्ट्रिक्ट का होता है, उसने कोई मीटिंग कॉल नहीं किया, इसका कोई रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं है। इट मीन्स कि सिर्फ ऑर्डर इशू हुआ है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बराबर नहीं हो रहा है। हमने स्टेट गवर्नमेंट की जो था उसमें हमने देखा, अभी हम कमीशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। According to the State Information Commission's website, there are around 4,153 cases were disposed of from January 2021 to September 2021. 4,100 केसेस इन्होंने डिस्पोज किए हैं। और अगर हम दिसंबर तक का अगर जो फिगर्स थे उसको अगर हम देखते हैं, 10,000 प्लस जो केसेस थे, उसमें से अगर 4,153 केसेस अगर हम निकालते हैं, तो अभी पुराने जो केसेस है उसमें से देयर आर अराउंड 6,661 ओल्ड केसेस आर स्टिल पेंडिंग। और जो नए केसेस जो एप्लीकेशंस आए हुए हैं कमीशन के सामने फ्रॉम द जनवरी 2020 टिल डेट, वी डोंट हैव दैट इंफॉर्मेशन। इट मींस के अभी भी 10,000 के आसपास कुछ केसेस जो है कमीशन के पास पेंडिंग है, और हमारे इंफॉर्मेशन कमीशन में 6 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स काम करते हैं। एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कमीशन जी नहीं, अभी नहीं गया मैं सर। Sorry. The TS Information Commission informed in response to my RTI application that annual reports which were prepared for the year 17, 18, 19 were submitted to the state government for the further action only in 2020. 3 साल का रिपोर्ट उन्होंने अपने पास रखा था और 2020 में उसको उन्होंने गवर्नमेंट के पास भेजा है। और 2020 का जो रिपोर्ट है वो अभी अंडर प्रिपरेशन है। एनुअल रिपोर्ट बहुत ही मैंडेटरी है कमीशन का, जो स्टैटिस्टिक्स देता है गवर्नमेंट के काम करने का, यानी कितने एप्लीकेशंस एक साल में एक डिपार्टमेंट में एक स्पेसिफिक पीआईओ ने रिजेक्ट किए हैं अंडर सेक्शन 81J, कितने एप्लीकेशंस ट्रांसफर किए हैं अंडर सेक्शन 63, और कितने केसेस डिस्पोज किए हैं, कितने केसेस पेंडिंग है, उसका पूरे स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट वाइज कमीशन बनाता है। पहले हर साल उसकी रिपोर्ट रिलीज होती थी, उसका फंक्शन होता था बाद हफ्ता, फंक्शन में ये सारी चीजें रिलीज की जाती थी, उस पर डिस्कशन होता था। लेकिन ये रिपोर्ट पिछले 3-4 साल की रिपोर्ट कमीशन ने पब्लिकली नहीं की है। इट मीन्स कि कमीशन खुद इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है। इट शोज कि उनके पास खुद कोई सीरियसनेस नहीं है कि उसको डील करें। पेनलाइजेशन का जो प्रोविजन है आरटीआई एक्ट में, तो देयर आर सेवरल प्रोविजन। एक जो है सेक्शन 19(8)(b), इट डील्स विद द कंपनसेशन। अगर कोई अप्लाइकेंट को टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलने की वजह से कुछ लॉस होता है और कुछ डैमेजेस होता है, तो ही कैन क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड कमीशन कैन डायरेक्ट द पब्लिक अथॉरिटी टू प्रोवाइड द कंपनसेशन। तो इस सेक्शन में पिछले 4 साल में सिर्फ एक केस कंसिडर किया गया है कमीशन में, जिसमें 10,000 रुपये एक अप्लाइकेंट को दिया गया। सिर्फ एक ही केस। हमारे पास हजारों केसेस कमीशन में पेंडिंग है, लेकिन उसमें सिर्फ एक केस को इसमें कंसिडर किया गया है। Section 21 deals with a failure to provide information by the public authorities within the specific period of time, or malevolently denying the request, or has provided incorrect or incomplete information to the applicant. यानी जितने एप्लीकेशंस रिजेक्ट होते हैं पीआईओ के पास से, और जितने, या हम ऐसे कहेंगे जितने अपील या कंप्लेंट्स कमीशन के पास जाते हैं विद रिक्वेस्ट टू इंटरवेन, वो ज्यादातर ये होते हैं कि किसी ने इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं दी, किसी ने दिया है तो गलत इन्फॉर्मेशन दी या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी, तो लोग जाते हैं। तो हजारों के एप्लीकेशंस में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है हमारा, उन्होंने पिछले 2014 से लेके 2020 तक सिर्फ 2 केसेस में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को पेनलाइज किया है। सिर्फ 2 केसेस उन्होंने कंसिडर किए हैं अंडर सेक्शन 21। सेक्शन 41B, जैसे शैलेश सर भी बोल रहे थे कि सेक्शन 41B जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आरटीआई एक्ट का, जिसमें गवर्नमेंट के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए और पब्लिक अथॉरिटीज के लिए मैंडेटरी है कि जो मटेरियल उनके पास होता है, लिस्ट ऑफ मटेरियल जिसको हर डिपार्टमेंट सो मोटो प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज करे ऑन देयर वेबसाइट्स या फिर उनके पास फाइल्स में। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। जैसे हम वार भीती सर सुनबो सुनी वार भीती सुनबो जब मोर मां आतला काय है ना अब तो जैसे हम देख रहे थे कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो हैं, स्पेशली
गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो हैं वो जरूरी है स्टेट गवर्नमेंट को पब्लिक डोमेन में रखना। सर्कुलर्स हो, चाहे मेमो हो, चाहे मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स हो, वो सारी चीजें 81B के अंडर में आती हैं। लेकिन स्टेट जहाँ पे फेल हुआ है वहाँ पे कमीशन ने भी उसके ऊपर कोई एडवाइजरी इश्यूज नहीं की। यानी नंबर ऑफ एप्लीकेशन जब कमीशन के पास आ रहे थे अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी, तो कमीशन अपना जो पावर्स है उसको इंटरटेन करके गवर्नमेंट को लिख सकता था कि आप लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए सो मोटोली, ताकि एप्लीकेशंस कम आए। लेकिन उसमें भी कमीशन ने आरटीआई के जवाब में दिया कि उन्होंने कोई एडवाइजरी या ऑर्डर या सर्कुलर इशू नहीं किया गवर्नमेंट को फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। सो ये मोटा मोटा ये एक पिक्चर जो था मैं देना चाह रहा था कि यहाँ पे किस तरीके से है। आई होप श्रीधर सर will talk about that circular which was recently issued by the Chief Secretary, Government of Telangana. Thank you. Yeah. Good evening, Mr. Masood and other friends. This is a very, very sad state of affairs you have presented. मैं आपकी प्रेजेंटेशन देखने के बाद मुझे बहुत अफसोस हो रहा क्या हो रहा है इधर ये कमीशन में। एक कंपनसेशन और 2 पेनाल्टी केसेस, बहुत सोचने की बात है। या हम जब मैं और शैलेश गांधी साहब कमिश्नर थे, हम तो हफ्ते में 2-3 पेनाल्टी लगाते थे। हमें ये अगर पेनाल्टी लगाए तो पेनाल्टी कमीशन का इनकम होता है। जो पैसे पीआईओ भरते हैं ना, वो कमीशन को आता है। अगर जो कंपनसेशन देना है तो पब्लिक अथॉरिटी से अपलेंट को जाता है वो पैसे। ये पेनाल्टी का पैसे कमीशन को आता है। तो हम दोनों, मैं और शैलेश गांधी, जब हम काम कर रहे थे, हम बहुत ज़्यादा पैसे दिलाए कमीशन को। और आजकल लोग सोचे तो पैसे ले रहे हैं सैलरी के रूप में, लेकिन दिला रहे नहीं। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरी केस शुड बी पेनलाइज्ड। कभी कभी होता है, ये होता है पीआईओ रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उनके ऊपर जिम्मेदारी रखना गलत बात होता है, क्योंकि वो उनके ऊपर वाले ऑफिसर की बात मानना पड़ता है ना। एक छोटा सा एम्प्लॉय है वो पीआईओ, ये बहुत बड़ा ऑफिसर नहीं है। अगर ये ऑफिसर उनके हायर ऑफिसर की आज्ञा मानकर अगर सूचना नहीं दिए तो हम इनको पेनाल्टी लगाने में कोई जस्टिस नहीं है, वो इंसाफ नहीं होता है। तो मैंने क्या करते थे, मैं पूछते थे उनसे, आप क्यों नहीं दिए, इसका मतलब क्या है? आपके पास वो सूचना नहीं है और आप नहीं देना चाहते हैं, और कोई मना किया आपको देने से, तो वो हेजिटेट करते थे। सी दे डोंट इवन डिस्क्लोज, हमारा बॉस मना किया, मैंने नहीं दे पाऊंगा, ऐसा नहीं बोल सकते वो लोग। अगर वो ऐसा बोले तो उनका जॉब चले जाता वहाँ पे, ही विल बी हरास्ड। तो इनका भी हाल हम देखना पड़ेगा। A judge has to examine the condition of the PIO also. So I never imposed a penalty on PIO when it is clearly visible, though it is not proved, when it is clearly visible that he could not give information. अगर उनको देने के लिए सूचना उनके पास नहीं दिए गए हैं तो कैसे देगा? एक बार एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने अपने पेंशन के बारे में आरटीए लगाया, तो मैंने उनका अकाउंट्स ऑफिसर पेंशन नहीं दिया। देन मैंने पूछा आप क्यों नहीं दिए? बोला वो नहीं बोल रहा था, क्या हुआ, कहाँ फाइल रुक गया, वो सब कुछ नहीं बोल पा रहा था। तो मैंने पूछा वो फाइल अब कहाँ है? देन डू नो व्हाट ही सेज, सर फाइल रजिस्ट्रार के अलमीरा में भी नहीं है साहब, ये वीसी साहब के रूम में है। वीसी साहब वो रूम से वो फाइल बाहर आए तो हम कुछ कर सकते साहब, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। That is the position. Now he doesn't say that VC stopped him. Now he will not also say registrar मना कर दिया, ये सब नहीं बोल पाएगा। So we can't penalize PIO in some cases. जब PIO खुद वो आरटीए के अगेंस्ट है, वो पिटिशनर से वो ये करता है, रिश्वत मांगता है, नहीं तो कुछ ऐसे गलत काम करते हैं, तो हम और उनको सूचना नहीं देना बोलकर इनका एक माइंडसेट है, एटीट्यूड है, तो हम पेनाल्टी लगाना ही पड़ेगा। सो ऐसा सोचकर काम करना पड़ेगा। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ आपसे, सरकारी दफ्तर में ऊपर वाले ऑफिसर की बात मानना ही पड़ता है।
पीआईओ को। सो इनसे पूछने के बगैर सूचना नहीं मिलेंगे हम लोगों को। इस बैकग्राउंड में देखें तो चीफ सेक्रेटरी साहब का सर्कुलर मीनिंगलेस होता है। क्या बोल रहे हैं अब? हमारे टॉप ऑफिसर का, हायर ऑफिसर्स का रिटर्न ऑर्डर लेकर आप सूचना देना, अगर रिटर्न ऑर्डर नहीं है तो सूचना नहीं देना बोल रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा है? ओरल ऑर्डर से नहीं दे रहे, ओरल ऑर्डर से दे रहे। अब क्या पूछ रहे हैं आप? रिटर्न ऑर्डर से आप रिटर्न ऑर्डर मिलने के बाद ही सूचना देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं देना बोल रहे आप। ये दिस इज अ वेरी सिंपल केस ऑफ en masse denial of right to information of masses of Telangana. This is a very clear case of law laid down by the executive against the law made by the parliament. तो पार्लियामेंट हमारे लिए जो कानून तैयार किया है, जो अमल करना, इसको अमल करना हमारा काम है, हमारा ड्यूटी है। हमारा मतलब हमारा स्टेट का सेक्रेटेरिएट और चीफ सेक्रेटरी और इनके परिवार का, इनका स्टाफ का ड्यूटी जो है, कानून को अमल करना उनका ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। अरे कानून को अमल नहीं करे तो जवाबदार यही बनने पड़ेगा, जिम्मेदारी यही लेना पड़ेगा। अगर ये खुद ऐसे सर्कुलर निकाले, इससे क्या होता? नो ऑफिसर विल नाउ गिव एनी इंफॉर्मेशन। पीएओ तो डरता है अब। तो रिटर्न ऑर्डर कब मिलेगा? रिटर्न ऑर्डर? अगर ये अप्लाई करना, then that application has to be passed on to the higher officer. Higher officer will circulate it to legal department, and legal department कुछ बोलते हैं। तो जो पीआईओ के पास डिस्क्रिशन था वो निकाला गया है इस सर्कुलर से, and PIO's discretion cannot be removed. Executive can change the PIO, लेकिन इसका डिस्क्रिशन को निकाल नहीं सकते। अगर सरकार चाहे, सरकार का ये क्लेम है, ये लोग समझ नहीं पा रहे, रिकॉर्ड को समझ नहीं पा रहे, वो प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे, इसीलिए सूचना नहीं दे रहे। सूचना दे रहे, इनका कंप्लेंट है, सूचना दे रहे, वो है उनका कंप्लेंट। सूचना कैसे दे रहे हैं? विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स दे आर रूटीनली गिविंग इंफॉर्मेशन। ये है उनका सेंटेंस सर्कुलर में, अगर देखे तो आपको ये पता चलेगा। मैं पूछ रहा हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब से, अगर ऐसा आपको इन्फर करने के लिए क्या वजह है, क्या रीजन है? आप कुछ स्टडी करें क्या? कोई गलत तरीके से सूचना दी है क्या पीआईओ लोग? जो सूचना नहीं देना था वो दिए क्या? अगर जो सूचना रिकॉर्ड में नहीं है वो दे रहे क्या? दफ्तर में जो सूचना नहीं है, दस्तावेज में जो सूचना नहीं है, हाँ, फाइल में जो नहीं है वो दिए क्या? अगर कोई ऐसा दे सकते क्या? आरटीआई का पूरा मतलब क्या है? जो ऑफिस के फाइल में जो कागज है उसका कॉपी ले सकते हैं आप, इतना ही है बस। द एंटायर आरटीआई इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट कैन बी रिड्यूस्ड टू वन सेंटेंस। यू हैव ए राइट टू हैव ए कॉपी ऑफ ए शीट इन द फाइल ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस, बस इतना ही। इसमें सूचना देना क्या? वो जवाब देता क्या, लिखता क्या? आपको जवाब इसलिए नहीं मिला, ये ऐसा किया, ऐसा हुआ बोल के कहानी बताता क्या पीआईओ? नहीं, ही विल सिंपली टेक ए सिलेक्शन कमेटी का जो ऑर्डर रहता है ना, वो आपका कॉपी आपके मुंह पे फेंक देता, और वो पढ़ के आपको मालूम होता है आपको इतना मार्क्स मिला, ये जॉब मिलना था, नहीं मिला, ये पता होता है आपको। तो जो जहां लड़ना है वो कागज लेके आप कोर्ट में जाना पड़ता, लड़ना पड़ता। बट दिस मैन सेज, दिस सर्कुलर सेज नहीं देना, रिटर्न इंस्ट्रक्शन नहीं है तो नहीं देना। सो इसका मतलब क्या होता है? अभी तक ओरल इंस्ट्रक्शन से वो नहीं दे रहे सूचना, अभी तक ओरल इंस्ट्रक्शन से जो देना है, जो दिए है वो इंस्ट्रक्शन, ओरल इंस्ट्रक्शन मिले तो दे रहे। अब ओरल इंस्ट्रक्शन से भी सूचना नहीं मिलेगा, रिटर्न इंस्ट्रक्शन रहे वो भी पॉजिटिव, ये सूचना आप देना है, प्लीज गिव, बोले तो वो देते, नहीं तो नहीं देते। दिस इज द प्रॉब्लम। Now, not in 30 days, even if you give them 6 months, you will not get information. This is the position in Telangana because of this circular. आप सब लोग आवाज उठाना ये सर्कुलर वितरा करने के लिए। That is one point I would like to say. The second aspect I would like to discuss with you is, अगर जो जूनियर को आप पीआईओ लगा रहे,
पीआईओ को किस ऑफिसर को डिजिग्नेट कर रहे हैं आप? एक छोटा क्लर्क को डिजिग्नेट कर रहे हैं, नहीं तो जूनियर असिस्टेंट को कर रहे हैं। लक है आप पियून को नहीं कर रहे, पियून को आप पीआईओ डिजिग्नेशन नहीं दे रहे। इफ यू थिंक दैट योर पीआईओस आर नॉट डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज प्रॉपरली, आप क्या करना होगा? आप इसके सीनियर ऑफिसर को डिजिग्नेट करना होगा। जो भी सीनियर ऑफिसर है, जो फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी के जैसे आप डिजिग्नेट कर रहे हैं ना, वो लोगों को आप डिजिग्नेट करो पीआईओ से। तो आपके हाथों का काम है, और जो वो अधिकार तो आपके हाथ में है, और क्यों नहीं करे वो? अगर आजकल पीआईओ प्रॉपर वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स का नहीं कर रहे, सूचना नहीं दे रहे, और सूचना रूटीन मैनर में दे रहे बोल के आप सोच रहे तो पीआईओ को बदल डालो, डेजिग्नेट सीनियर्स। आप क्यों इनका पावर्स क्यों छीन रहे? Instead of taking away the discretionary powers of PIO, the chief secretary has enough power to designate senior officers of government offices as public information officers so that they can give records in a proper manner. ये उनका जवाब है ना? ये क्यों नहीं सोचे? सरकार सोचना था ना, क्यों नहीं सोचे इसके बारे में? This is one point. And there is third very important point is records. आप क्या बोल रहे हैं? रिकॉर्ड प्रॉपर वेरिफिकेशन करके देना, रूटीन में नहीं देना। ठीक है, मैं भी मानता हूं, लेकिन रिकॉर्ड प्रॉपर रिकॉर्डिंग है क्या आपके पास? कोई चेक करे क्या? आप कैसे बोल रहे हैं आपके रिकॉर्ड्स प्रॉपर कंडीशन में है? कैसे बोल रहे हैं आप? कोई कमिटी का रिपोर्ट है, सर्वे करे आप? कुछ नहीं करे। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41A 41B के बारे में मसूद साहब बात करें, ठीक है, वो सच है। शैलेश गांधी भी साहब भी वो बहुत अच्छा बोले इसके बारे में, लेकिन 41A का क्या मतलब है? 41A का ये मतलब है, दिस इज ए मैंडेट ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। मैंडेट, शेल लिख के रहता हो। आप बोले ना साहब, मसूद साहब, हम कानून नहीं जानते बोल के, लेकिन शेल का मतलब जानते हैं ना? शेल बोले तो क्या है? जरूर करना। There is no discretion available to you. You have to do. There is no choice. So shall maintain records in a proper manner. एक ये दिया, वो रिलैक्सेशन दिया उनके लिए, वो है unless it demands huge resources in a reasonable time. Reasonable time पे आप रिकॉर्ड्स को क्लासिफाई करना, कैटेगराइज करना, जो देने के लिए सहूलत होता है उस रूप में रिकॉर्ड्स को रखना। You have to keep records in such a manner that they can be accessed by the people. ऐसा देना पड़ेगा, ऐसा करना बोल के 41A में है। चीफ सेक्रेटरी साहब, वो पढ़ना जरूरी है। 4A पढ़िए, 4A प्लीज रीड, समझिए आरटीए क्या बोलता है हमारे लिए। मैं आपसे आपकी बात को मानता हूं। मैं आम आदमी के लिए कानून पढ़ना, कानून कोट करना, डिसीशंस जैसे शैलेश गांधी साहब ने डिसीशंस कोट करना, वैसा कोट करना बहुत मुश्किल है। ये लायर ही कर सकता है वो ऐसा। वो कमिश्नर साहब बन के बहुत अच्छा आर्डर्स दिए शैलेश गांधी, इसीलिए वो सब आर्डर्स मेरे जैसे हैं वो भी कोट कर रहे हैं। मैं तो लॉ प्रोफेसर हूँ, मैं भी कोट कर सकता हूँ, लेकिन मैं लॉ में जो है वो मैं बताना जरूरी समझता हूँ, ज़्यादा जरूरी समझता हूँ। उसको कोट करने से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? अगर कोई कोर्ट में आर्ग्यू करे तो वो सब कोट करेंगे हम भी, लेकिन आपके सामने मैं जब बात कर रहा हूँ, मैं आपको समझाना पड़ेगा ना कानून क्या बोलता है। मैं वो काम कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैं आपके सामने वो पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ। बट मैंने पूरी तरह से सहमत हूँ शैलेश गांधी साहब से। जो भी वो बोला, वो साहब बोला, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई असहमत होने की कोई बात ही नहीं, उसमें सहमत होना ही पड़ेगा। ऐसा कानून की बात बोले साहब। दो ही इज नॉट एन लीगल एक्सपर्ट, he has presented his judgments and today's presentation like a legal expert. मैं उनके लिए बहुत तारीफ करता हूँ साहब को, जो जैसे लॉ प्रोफेसर भी नहीं कर पाएंगे कभी कभी, ऐसे कर पाए हैं शैलेश गांधी साहब। लेकिन सुनने वाला कौन है? वो साहब बोले ना, ये गिरीश रामचंद्र देशपांडे पर इंक्यूरियम है, वो सही बात है। और राजगोपाल केस में जो जीवन रेड्डी साहब का जजमेंट है, वो हमारा हाई कोर्ट में काम करके सुप्रीम कोर्ट में गए थे। जीवन रेड्डी साहब हैदराबाद का बहुत बड़ा जज, बहुत अच्छा जज है वो।
वो उनका जजमेंट है, वो 1994 आर राजगोपाल का केस में उनका अपहोल्ड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्राइवेसी जजमेंट की दिए ना 9 जजेस बेंच, 9 जजेस बेंच क्या बोलती है, आर राजगोपाल में जीवन रेड्डी साहब जो बोला वो सही है, और उसके साथ साथ ये बोलता है जो गिरीश रामचंद्र देशपांडे में भी है वो भी सही है। वो कैसे होता है भाई? गिरीश रामचंद्र का जजमेंट कॉन्ट्रडिक्ट्स राजगोपाल जजमेंट, बट सुप्रीम कोर्ट सेज बोथ आर करेक्ट। कैसे होता? बोथ आर प्रेसिडेंट्स कैसे होता? ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है इस लॉ में। सो पीआईओ इज टुडे इन अ कंफ्यूज स्टेट। आई टेल यू, पीआईओ सुप्रीम कोर्ट की बात मानना, पार्लियामेंट की कानून मानना, नहीं तो जो सुप्रीम कोर्ट जो प्राइवेसी जजमेंट में जो जजमेंट दिए उनकी बात मानना। क्या करना पड़ेगा? पीआईओ इन इंडिया इज इन डिफिकल्ट कंडीशन। मैं बोल रहा हूं आपको, हम अगर सूचना अधिकार को जिंदा पाने की, जिंदा रखने की कोई मकसद हमारे सामने है तो हम पीआईओ को इंडिपेंडेंट पावर्स दिलाना हमारा काम है। पीआईओ शुड बी having back his discretionary power जो कानून में है। कानून क्या बोलता है? पीआईओ साहब देखना, अगर ये सूचना देने वाला सूचना है, देने वाली है, देने वाली नहीं है, उनका सोच विचार हमारे लिए काम होता है, ना उनकी ऊपरी सुपीरियर ऑफिसर्स का नहीं है। कानून में 2-3 अथॉरिटीज रहते। हमारे कानून में आरटीए कानून बहुत अच्छा कानून है, दुनिया से सबसे बेहतर कानून है। दुनिया में इतना बड़ा अच्छा कानून आरटीए के बारे में नहीं है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो भी हमारे लिए एक किताब दी है, वो बोले योर लॉ इज नंबर 1 लॉ इन द वर्ल्ड। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इसको हम खत्म कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। मर्डर कैसे कर रहे हैं? पीआईओ का डिस्क्रिप्शनरी अधिकार छीन रहे हैं ये सर्कुलर के जैसे सर्कुलर से। और दूसरा ऑफिसर कौन है आरटीआई के अंदर? फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी इन इंडिया इज अ फेल्योर। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी हैज बीन designated in Indian Right to Information Act to correct the mistakes of PIO. अगर कोई PIO मिस्टेक करते हैं तो रिव्यू के लिए हम फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में जा सकते हैं। लेकिन वो आजकल क्या कर रहा? सिंपली इज एंडोर्सिंग। हमारे दफ्तर में कैसे होता है, जो छोटा ऑफिसर जो लिखता है उनको एंडोर्स करते हुए चले जाते ऊपर तक। ऐसा फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी इनको एंडोर्स कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस रूटीन में जाता है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को, और रूटीन में रिजेक्ट होता है, वो सेकंड अपील में आते हैं। और तीसरा अथॉरिटी है आरटीआई के अंदर इंफॉर्मेशन कमीशन। हम इसको क्या करें? हम इसको भी खत्म करें। कैसे? इससे पहले जब हम काम कर रहे थे और शैलेश गांधी साहब सीएससी के जैसे काम कर रहे थे, डिस्चार्ज कर रहे ड्यूटीज, जब उनका क्या बोलते साहब पोजीशन को उनका डेजिग्नेशन सुप्रीम कोर्ट जज से समान था। सुप्रीम कोर्ट जज और इलेक्शन कमीशन के समान था। आज क्या है पता है आपको? उनका डिजिग्नेशन का लेवल क्या है? जॉइंट सेक्रेटरी है। उसको गिरा दिया, पर सुप्रीम कोर्ट के स्तर से गिराकर ही बिकेम ए जॉइंट सेक्रेटरी। मैं आपसे पूछता हूं, एक जॉइंट सेक्रेटरी कमीशन बनने के बाद, नहीं तो कमिश्नर जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे रहने के बाद, वो चीफ सेक्रेटरी को कोई आदेश दे पाएगा क्या? उसमें इतना धैर्य, क्या बोलते हैं, ताकत रहते है क्या आदेश देने के लिए? सूचना दे दो बोल के आदेश कर सकते क्या? ऑर्डर कर सकते क्या? नहीं करते। तो क्यों दिया इससे पहले? वो सोचना। When RTA Act was passed in 2005, why the designation, why the power of, or what क्या बोलते हैं इसको, power नहीं, level of, why the level of term, position of information commission was equated with election commission? Why it was equated with Supreme Court judge? क्यों? क्योंकि अगर वो सुप्रीम कोर्ट जज है तो सुप्रीम कोर्ट को भी अब आदेश दे सकते हैं, पीएमओ को भी आदेश दे सकते हैं, राष्ट्रपति भवन को भी आदेश दे सकते हैं। हमने राष्ट्रपति भवन को आदेश दिए,
प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को आदेश दिया। अब आपसे मैं पूछता हूं, अभी तक कोई आदेश ऐसा आप देखे क्या जो पीएमओ को ऐसा काम करो, ये सूचना दो बोलकर कोई कमिश्नर दिए क्या आज तक? तो क्यों है ये? इफ पीएमओ is liable to give information under Right to Information Act, but Central Information Commission cannot pass an order to PMO to give information. What kind of a law we are implementing? यही हाल स्टेट में भी है। सीएमओ को, गवर्नर ऑफिस को, हाईकोर्ट को सूचना देवो बोल के आदेश देने के लिए किसी में भी हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बोले तो इसका इंडिपेंडेंस हटा दिया। its independence was removed by 2019 Amendment Act. स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का इनकी होदा, इनकी डिजिग्नेशन, इनकी सैलरी और टर्म ऑफ ऑफिस डिसाइड करने का अधिकार किनके पास है साहब? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। लेकिन 2019 की अमेंडमेंट से क्या किए? वो पूरा अधिकार सेंटर में ले लिए। ये कौन है भाई सेंटर में लेने वाले? ये बिल्कुल संविधान का खिलाफ है। लेकिन कौन बोलना, कौन सवाल करना? कोई सवाल करे तो उनके सुनने वाले नहीं है और सवाल करने वाले भी नहीं है। 2019 अमेंडमेंट को चैलेंज अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने का मौका नहीं मिल रहा, मौका नहीं दे रहे। दिस इज द प्रॉब्लम। सो मैंने आपको क्या बताया आज? 3 ऑफिसेस, 3 अथॉरिटीज अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, पीआईओ, इनको खत्म करा, सर्कुलर खत्म किया, सर्कुलर जारी करके। दूसरा, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी खुद वीक है, they are not interested in working. Then third, Central Information Commission, State Information Commission has been weakened because their power is reduced, their term is reduced, their salary is reduced, and everything is reduced. ये 3 साल क्यों रहना, 5 साल क्यों नहीं रहना? बताना ये लोग। ये कौन है बोलने वाले 3 साल ही रहना बोल के? कौन है ये लोग बोलने वाला? When law says by law it is fixed, how can you take it away by law? How can you do that? So these are the legal problems. अगर एक बात तो मैं साहब शैलेश गांधी का मैं भी मानता हूं, मैं आपसे भी विनती करता हूं, अगर आप आरटीआई को इस्तेमाल आप नहीं करें तो आरटीआई मर जाएगा। आरटीआई will be killed by non-use of RTA by RTI activists, not by circulars, not by judgments, not by amendments. Amendment, judgment, and circular means what? They are taking their weapons. Circular is weapon of executive, amendment is weapon of legislature, और judgment is weapon of Supreme Court, judiciary. ये तीनों तरफ से हमारे आरटीआई के ऊपर हमला हो रहा है। हम क्या करना? हम आरटीआई को इस्तेमाल करते हुए वी शुड मेक इट हैबिचुअल फॉर पीआईओस एंड पब्लिक अथॉरिटीज टू गिव इंफॉर्मेशन। हमारा गलती है ये। इफ वी आर नॉट यूजिंग इट प्रॉपरली, प्रोफ्यूजली, और इफ वी आर मिसयूजिंग इट, इट इज अवर मिस्टेक, इट इज नॉट द मिस्टेक ऑफ द लॉ। संविधान आपके सामने है, संविधान में बोलने का हक है, बोलने का हक। अगर हम नहीं बोले तो हम क्या करें? बोलने का हक का अंतर्गत हक है सूचना का हक, उसमें शामिल है ये, क्या बोलते हैं? इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ये सर्कुलर गलत है बोल के नहीं बोलते हम, ये जजमेंट गलत है बोल के नहीं बोलते, और वो अमेंडमेंट के खिलाफ भी नहीं बोलेंगे। तो क्या होगा? when they are attacking and you are not denying or you are not questioning, what will happen? एक मैं लिख रहा हूँ तेलुगु में, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, एक शैलेश गांधी साहब लिख रहे हैं, बाकी सब हम क्या कर रहे हैं? दिस इज माय वरीइंग पॉइंट। मैं आपको एक इंसिडेंट के बारे में बता के मैं क्लोज करता हूँ। ये केरला एक कानून का अमेंडमेंट लाया, पुलिस एक्ट में संशोधन। वो क्या है, क्या पता है आपको? अमेंडमेंट पुलिस ऑफिसर को
ये पावर दिया गया है कि न्यूज़पेपर वालों को और ये जो बोलने वाला है ना उनको बंद करने का पावर दिया गया है पुलिस ऑफिसर्स को। हम सब आर्टिकल्स लिखे, दिस इज टेरिबल। पुलिस एक्ट अमेंड करते समय में आप कानून की, संविधान की हक को आप कैसे बदल डालते? बहुत बड़ा गलत काम है। देन पिनराई विजयन था चीफ मिनिस्टर, अभी भी वही है। तो पिनराई विजय को सब लोग अपील्स करे, ये विथड्रॉ करो, ये अमेंडमेंट ये ठीक नहीं है, एंड ही हैज विथड्रॉन, ही हैज विथड्रॉन। जो 19(1)(a) बोलने का हक के ऊपर जो हमला कर रहे हैं, इसका जवाब क्या है? 19(1)(a) का यूज इज द आंसर। इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट 19(1)(a), 19(1)(a) has to be used. If you want to protect RTI, you have to use RTI. अगर हम यूज ही नहीं करें तो कैसे बचेगा? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जाते हैं ना, डार्विन का थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या बोलते हैं? डार्विन क्या बोलते हैं? जो भी जो जंतु है, जो एनिमल है, उनका कोई अंग अगर इस्तेमाल नहीं करे तो इसकी अगली पीढ़ी में वो अंग नहीं रहता बॉडी में। If you don't use a part of your body, the next generation of that species will not have that part in the body. That is the theory of evolution by Darwin, है ना? तो वही यहाँ पे भी चलेगा। If you don't use your RTI, you will lose your RTI. Use or lose RTI. ये हमारा स्लोगन होना चाहिए। Please ask all your workers, activists to use RTI to question wrongs against RTI, attack on the RTI, attack on RTI activists, and then demand withdrawal of circular. मैंने पूछा एक स्टेटमेंट में, सेक्शन 4(1)(c) ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सेज, अगर आप कोई पॉलिसी में बदलाव लाए तो इसके बारे में जो भी सूचना आपके पास है वो सब पब्लिक डोमेन में रखना पड़ेगा। 4(1)(c) पढ़िए आप। बिल्कुल बोलते हैं शल है, ये मे नहीं है, शल। मे का मतलब मे नॉट भी हो सकता है, शल का मतलब शल नॉट नहीं होता कभी। शल बोले तो शल है, वो इंग्लिश का शब्द शल। सो यू हैव टू डिस्क्लोज। तो मैं CS साहब से मैं पूछ रहा हूं, आप ये सर्कुलर दिए ना, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे आपके पास क्या सूचना है? फाइल्स बिल्डअप हुआ, कौन आपसे डिमांड किया ऐसा सर्कुलर जारी करो बोल के? ऐसा क्यों किया? अगर वो कोई किए तो क्यों किए? अगर आपका पढ़ा, आपका सर्वे क्या बोलता है? आप कैसे मान रहे हैं प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं कर रहे बोल के? आप कैसे कंक्लूजन पे आए? आप ये सब सूचना बताना कानूनियत जिम्मेदारी है। इट्स अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन अंडर सेक्शन 4(1)(c) ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। डिमोनेटाइजेशन हुआ ना, जब मोदी साहब ने किया ना 2016-2017 में हुआ, देन मेरे सामने एक सेकंड अपील आए थे। मैंने क्या किया, 4(1)(c) mandates you to give complete information about demonetization। देव बोल के मैं RBI को आदेश दिया, PMO को भी आदेश दिया। became a big news। एक बार मुझे एयरपोर्ट में रघुराम राजन मिले थे। रघुराम राजन पता है ना कौन है? RBI गवर्नर। तो I introduced myself to him. We were waiting for a flight. Then I gave my card to him. Then he saw it. Those were the days where demonetization was going on. Then I was itching to ask about demonetization because he was an RBI governor, but I was resisting, क्योंकि सब लोग यही बात पूछते रहते हैं उनको। Perhaps he will get vexed by this question. So मैंने कुछ नहीं पूछा, लेकिन मेरा कार्ड दिया, मैं बोला मैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर हूँ। Do you know what he said? What he asked? Professor, you are an information commissioner. I would like to ask you one question. He himself asked me one question. Do you know what is that question? Now the government of India has introduced the policy of demonetization. Is it not necessary for the government to tell the entire information about it?
बहुत बढ़िया सवाल है ना रघुराम राजन का। मैंने साहब जस्ट वेट ए मिनट, मैं मेरा मोबाइल से निकाला 41C, उनको उनसे पढ़ के सुनाया था। 41C says whenever you make a policy, you have to disclose all related information and reasons for that policy change to the affected persons. Demonetization में affected person कौन है साहब? सब लोग है ना, एंटायर इंडिया। तो एंटायर इंडिया को अब सूचना देना पड़ेगा इसके बारे में क्या क्या सोचे आप सोच विचार कैसे आए थे, अब कहाँ से ये ऑरिजिन हुआ, तो डिमोनेटाइजेशन था और कहाँ तक आया और क्या क्या करें, आप सब सूचना आप हमारे सामने रखना जिम्मेदारी है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। क्यों नहीं कर रहे? देन ही वाज शॉक्ड एंड ही वाज अप्रिशिएटिंग मी। यार मैंने बोला आप मुझे क्यों अप्रिशिएट करते हो, वो पार्लियामेंट की कानून है, वो मैं कुछ आपको दिखा रहा हूँ बस। That is the problem. We have a good law, but we have bad amendments. We have bad circulars. We have bad judgments. Unfortunately, bad judgments. एक ऑफिसर रिश्वत लेता है, समझो एग्जाम्पल, एक ऑफिसर रिश्वत लेता है तो इसके ऊपर एक्शन होता है, डिसिप्लिनरी कमिटी डिसिप्लिनरी एक्शन लेता है, उनका इंक्रीमेंट कट करते हैं। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है क्या, बताइए आप मसूद साहब? ये पर्सनल घर की मामला है क्या? ये ऑफिस की मामला है? ये रिश्वत घर में लेते साहब? कोई घर काम करने के लिए, एक खाना खिलाने के लिए रिश्वत लेते क्या कोई ऑफिसर? नहीं लेता ना। ऑफिस फाइल में सिग्नेचर करने के लिए पैसे लेते, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे हो गया? सुप्रीम कोर्ट वो कैसे मान लिया? वो गिरीश रामचंद्र देश पांडे में कैसे मान लिया? ये क्यों नहीं पूछते हम लोग? उसका रिव्यू करो बोल के क्यों नहीं फाइल करते? और सुप्रीम कोर्ट भी मानती है उनको, बहुत बड़ा जजमेंट बोल के। दीज आर ऑल वेरी सरप्राइजिंग थिंग्स। अफसोस की बात है, सिस्टम कैसे चला रहे हैं हम, जुडिशरी कैसे चला रहे हैं, एग्जीक्यूटिव कैसे चला रहे हैं। वी आर किलिंग आरटीआई, दे आर किलिंग आरटीआई, और इसको बचाना हमारा काम है। एक बार मद्रास हाईकोर्ट ने क्या किया, गलत जजमेंट दिया 6(3) के अगेंस्ट, सेक्शन 6 का, 6(3) नहीं 6(5) होता है शायद। इसमें क्या है, आप सूचना क्यों मांग रहे हैं, इसकी वजह क्या है, वो बोलने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 6 clearly says, 6(5) or 6(6) very clearly says that you need not give reasons for demanding information. अगर जो पूछा गया सूचना देना है देना नहीं है वो आप सोच लो, लेकिन क्यों पूछ रहे बोल के नहीं पूछना। इसके खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट एक जजमेंट दिया, नहीं सूचना क्यों मांग रहे वो बोलना ही पड़ेगा। बोले अरे क्यों, पार्लियामेंट तो ऐसा बोल रहे, आप क्यों ऐसा क्यों बोल रहे? तो पूरी देश में आवाज उठी इसके अगेंस्ट, and petitions went. I also wrote, even being a commissioner, I wrote an article against that order, saying that this is against the law passed by parliament. Do you know what happened? Madras High Court has withdrawn that judgment. वो पैराग्राफ जो है वो निकाल के फेंक दिया, और a judgment, new judgment without those paragraphs was issued by the Madras High Court. इसका मतलब क्या है साहब, अगर आप यही आपका 19(1)(a) बोलने का हक आप इस्तेमाल करें तो आपका बोलने का हक बच जाएगा। I'm sorry. So my request to all of you is use RTI to save RTI. Thank you. थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि इसको असर्ट करने के अलावा हम इसको असर्ट करेंगे, कर रहे हैं। और जैसे हुकूमत के जो दो तरीके का रवैया है, अगर हम एक ट्रैफिक वायलेशन करते हैं रोड पर तो हमको इमीडिएट चालान आ जाता है, इसी दिन हर दिन आता है। लेकिन एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अगर अपने जो उसकी जो ड्यूटी है उसको वायलेट करता है तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, गवर्नमेंट के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। तो इस तरीके का है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन कमिश्नर लाइक यू एंड शैलेश सर एंड दिलीप रेड्डी साहब एक टाइम पे थे हमारे पास, बहुत ही प्रोएक्टिव थे, बहुत ही मदद करते थे हम लोगों को। वेरी गुड ऑफिस जी स्टेट कमीशन में, क्योंकि उनका बैकग्राउंड जो था जर्नलिस्ट थे, उनको पता था कि लोगों के मसले क्या है, कैसे उसको जो सेव किया है। लेकिन आजकल ब्यूरोक्रेट्स को लाके बिठाया जा रहा है
और वो लोग सुनने के लिए राजी नहीं है। कई बार कमीशन में आर्ग्यू करते हैं हम लोग मैटर को, साइटेशंस देते हैं, और कमिश्नर कन्विंस होते हैं, लेकिन ऑर्डर में आता है कि नहीं, आपने जो बोला है वो गलत है, इनको अपहेल करते हैं पीआईओ को। तो दिस इज द सिचुएशन इन तेलंगाना. State of affairs. Yes. To address this issue, we are planning to conduct public people's information commission, ताकि वहां पे हम अपने केसेस को आर्ग्यू करें. कुछ जो भी लोग अवेयर हैं, जो लोग अटेंड कर सकते हैं, 10-15 लोग, हम इंपॉर्टेंट केसेस को लाएं, वहां पे आर्ग्यू करें, और हम ऑर्डर्स लें उसमें अकॉर्डिंग टू एक्ट. हमको ऑर्डर मिले कि ठीक है ये है, तो उसके लिए हमको आपकी मदद चाहिए होगा सर. मैं आपसे फिर कांटेक्ट करूंगा बाद में. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आप लोगों के सवालात हो तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके आप. कोई सवाल नहीं है? Yeah, we can conclude. I just have a comment. Namaste, Sridhar garu, Padmaja మాట్లాడుతున్నా. అమ్మా నమస్కారం, బాగున్నారా మేడం? Problem is that over the last several years, the structures of the state and all the institutions have become so tough and resistant. True. Actually, you feel disheartened, you know. You attempt a few times, your applications are pending, you go to the higher authority, nothing happens. So at some point you feel defeated, you know, because even the courts sometimes are not very open to these kind of interventions. I think there's a partly because handpicked people are there who are trained to resist. As Masud Sab was saying, bureaucrats are being planted, friendly people are being planted in commissions. Yeah. Who will, stonewall everything. True. Including the courts. It's the same situation. Yeah. So it feels like, why should we pursue this? Because it's such a hugely disheartening exercise, you know. I tried with the election commission, lot of correspondence, appellate authority. But I just gave up, you know. There's a point at which, you know, it's not going to happen. So how does one deal with that is my problem. My suggestion is we should not get disheartened. We should keep on fighting. That is the only way in democracy we can do. If not you, somebody else should take up the mantle and they have to do it. You have to keep questioning. That itself will keep the mantle burning, you know. Otherwise, it doesn't. It will go off. What can we do? So I know that by my letter, CS will not withdraw his circular. I know that. But I have to still write an article and I have to ask him to withdraw. I know that he will not demand give information under 4.1c. Yeah. But Masood should definitely file an application asking for, come on, show the entire file. Bolke, Sure. RTA mein dalna padega. Sure, Masood will do, sahab. sir. Will do. And then, you know, it will become a news and people will fear. They are fearing information, madam. Your apprehensions are right. Yeah. But they are also apprehending the Right to Information Act, na? Why are they doing all this? Because they are fearing RTI. Yeah. That means we should use RTI to fear them, to make them fear. So that's what we have to do. Ask such questions. Asking itself is an exposure, not answers. Yeah. Raising question itself should expose these officers. They are celebrating COVID. No, Supreme Court also is celebrating COVID because COVID, they need not hear so many cases. Yeah. They don't discuss the Kashmir. They don't discuss the migrant labor. They don't discuss challenge to 2019 amendment to RTI. They don't discuss that amendment to this, what is that? Various amendments which are taking away the human rights. Nobody is questioning. Agricultural, the farmers' bills, nobody takes up them. Yeah. The issue is stay and forget about it. Why? If you say that they are illegal, that is the end of the agitation. Huh? You are not doing anything. And you say you can't agitate. You can't hold the roads ransom. In fact, the farmers never stopped the traffic. They never did. Who's doing it? Yeah. They allowed traffic. They allowed everything. Yeah. But they are keeping put up. They are put up in agitation for a long time.
So Supreme Court's observation was wrong. Yeah. Supreme Court doesn't, first of all, give a judgment on the challenge to Farmers' Acts. And then if they continue, where is it they have to go? They can't go to courts, they can't go to streets. Where do they go? So my suggestion is, like farmers, you take the example, the perseverance of farmers as an example. Perseverance of farmers. Great agitation beyond 6 months. In spite of deaths, 673 deaths of farmers. 673. And they are still going on. We all should appreciate farmers for that wonderful agitation. It goes down in the history of the democracy, any democracy. So we should not, we should keep filing RTI applications. We should keep writing against RTI, demolishing exercises. We should question the courts also. We should question everybody. Come what may, what can we do? We can do that. We should do that. Thank you. Right, madam. Surely, sir, will do this. I will encourage people to file. Yeah, Masood साहब, अब 10 आदमी फाइल करना 416 के अंदर वो सब सूचना देना बोल के 10 आदमी फाइल करना आपके तरफ से. Sure, sir. Then they will fear to issue such circulars again, and you have to ask for GOs. Come on, put GOs in the public domain. If not, we'll assume that you are corrupt. Adverse inference ड्रा कर सकते हैं ना हम. क्यों छुपा रहे हैं? इसमें क्या मतलब क्या है? Thank you. Laik, can you please conclude the session? Ji Masude. So, dear friends, we are very thankful to our guests today, Sridhar sir and Gandhi sir, and all other friends, those who have joined tonight. And indeed, it's very important, especially India is such a vast country with a vast democracy and with a vast electoral structure. But unfortunate thing is that the practice of democracy on a deeper level is getting poorer and poorer as time passes. It is because that we need to be vigilant. People need to be vigilant about the policies, whatever the government is making, about the institutional performances. Whatever the institutions are there, it is for the people. It is to make people ease, but not to burden the people. So this right to information is a big gift for Indian people, especially, and we should not let the governments or institutions to dilute the spirit of this great law. So today we are very fortunate to have two great personalities, and we are very pleased to thank Brother Masood also to facilitate this discussion tonight with all our friends. Such more discussions will continue, and let's strive to make things possible so that the justice could deliver to the last. So thank you for joining all. Thank you very much. Goodbye. Thank you. Thank you. Thank you.